working people, women, men, and the youth center stage, empowering provinces, local governments, and communities, and protecting the most vulnerable. Our 10 pledges. Pledge number 1 is doubling real income, with an increase in the minimum wage in real terms by 8% every year. That is our pledge, that we will increase minimum wage in real terms by 8% every year to take it to a living wage. Double public investment, leading to large-scale increase in employment opportunities and thus reducing unemployment and underemployment. We will focus investment and jobs creation on the needs of local communities. Public-private partnership in the social and productive sectors at the provincial and local levels. We will achieve major boost in private investment in the housing sector by the people at the bottom of the pyramid, by a massive increase in the private home ownership amongst the poorest of the poor. And reforms and investments in agriculture and small business will lead to growth in incomes and employment for the poorest. Our second pledge is our Green New Deal. We have a climate change-related investment will be undertaken in the public sector and the public-private partnership mode, and by foreign direct investment. We aim to completely restructure Pakistan's development strategy, Pakistan's development agenda, Pakistan's PSDP, to tackle the climate crisis. Investment in Pakistan's public sector infrastructure, including roads, communication, health, irrigation, agriculture, with a focus on climate resilience. Once investments are made, it will unleash economic activity, generate employment opportunities, and prepare us for the impacts of climate change. Indigenous and green energy. Access to affordable electricity is a right. The existing system of pricing and distribution has failed our people. We will provide sustainable solutions to the energy crisis by providing electricity through indigenous sources and renewables. We will establish green energy parks across Pakistan through public-private partnership, providing off-grid power and green energy solutions for communities. In order to catalyze the energy transition, the poorest households will be given free electricity up to 300 units through solar generation, and this will be funded through carbon credits. Our third pledge, education for all. We will ensure schooling for all girls and boys of school-going age and implement Article 25A of the Constitution in letter and spirit. Ensure the provision of quality primary schools within 30 minutes travel time and quality middle and secondary schools within 60 minutes travel time in all communities. Stipends will be provided for school-going children in rural and low-income urban communities. And we will establish, inshallah, we will establish a university in every district of Pakistan. Our fourth pledge is healthcare for all. We believe that there's nothing more important than the health of a nation, and to this end, we will extend health initiatives already in place in Sindh across Pakistan. We will provide free primary health care and medicines across the country to the needy, ensure
ensure all basic health units are fully operational, provide free treatment for chronic disease, chronic diseases, diseases of the heart, diseases of liver, kidney, through public sector as well as through the public-private partnership model. Our fifth pledge is housing as a right. Housing for the poor, the landless, and the working class. Schemes covering rural and low-income urban areas in all provinces and regions. Modeled on the success of historic initiatives such as the Punjab Marhala scheme and the ongoing Sindh People's Housing Program for flood effectives. Families without ownership will be covered. At least 3 million climate-resilient homes will be built, and women heads of households will get the legal titles, the land rights of these properties. Kachi abadis across the country will be regularized, and the inhabitants will get ownership rights. They will also get their malakana hukuk. People living in the Kacha area, जहाँ से आजकल ये जो law and order situation है, उनको हम दावत देते हैं, उनको हम कहते हैं कि हम आपको मेन स्ट्रीम में लेकर आना चाहते हैं. आप ये हथियार छोड़ दे, ये वायलेंस करना छोड़ दे, आप पुरअमन तरीके से मुआशरे में आए, और मैं इंशाअल्लाह ताला आपके ख़वातीन को भी कच्चे में मालिकाना हुकूक दिलवाऊंगा. We will, and by harnessing public and private sector, we will be harnessing the public and private sector for home loans and mortgages for working people and for the lower middle class. ताकि एक तो हम गरीब तरीन लोगों के लिए पक्का घर बनाएंगे, मालिकाना हुकूक देंगे, मगर उनके पास जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो सफ़ेद पोश तबका है, उनके लिए हम समझते हैं कि मुल्क भर में अब बहुत महंगा हो चुका है घर लेना, बहुत मुश्किल हो गया है घर लेना. तो हम चाहते हैं कि ख़ास तौर पे वो उन नौजवानों के लिए जो नया अपना रोज़गार कर रहे हैं, या पहला एक ख्वाहिश होता है कि वो अपने लिए एक घर ले अपने ख़ानदान के लिए, तो उसमें हम चाहते हैं कि जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको हुकूमत मदद करे, और हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को मोबिलाइज़ करके कर्ज दिलवाए उनको, मॉर्टगेज दिलवाए उनको, ताकि वो अपने लिए वो अपना घर ले सके. सिक्स्थ जो हमारा सिक्स्थ प्लेज है वो गुर्बत मिटाओ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट expansion. We will expand the Benazir Income Support Program network to provide much-needed support to additional citizens who have fallen below the poverty line because of the unprecedented inflation and unemployment we are experiencing. In addition to poverty-based cash transfers, we will expand the following: Wasila-e-Haq, Wasila-e-Taaleem, Wasila-e-Rozgar, and Wasila-e-Sehat. Wasila-e-Haq ke through a program, the program to provide micro loans bila sood karze to women with a view to enhance small business and entrepreneurship among the underprivileged so they can break out of the cycle of poverty. We have successfully implemented this in Sindh with the People's Poverty Reduction Program through implementation partners like the SRSO. Wasila-e-Taaleem, the program is to provide
a top-up cash transfer per eligible child in the household with no upper limit on the number of children per household who are eligible for the program. Recipients of the Wasila-e-Taaleem transfer will remain conditional on maintaining a minimum 70% attendance rate. तालीमी इदारे में स्कूल में आपका अटेंडेंस रेट जो है उसको 70% होना पड़ेगा ताकि ये वसीला-ए-तालीम उनको मिले. Wasila-e-Rozgar mein, the program is to provide vocational training to a number of beneficiary families. The target beneficiaries will be offered up to 1-year training option that match their personal circumstances and self-employment opportunities that exist within their district. Wasila-e-Sehat ke through inhi khandanon ko we want to provide the program to provide a protection against catastrophic health expenditure to registered beneficiaries all across the country. Sindh mein to humne muft sehat ke idare khade kiye hain, baaki mulk mein ye options available nahi hain, aur hum samajhte hain ki iske bajaye ke tamam logon ko koi sehat card dene ke कि हम उन गरीब तरीन लोगों को जिनका हक बनता है उनको हम पूरी तरीके से कवर करें. तो ये हमारा गुर्बत मिटाओ बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिलसिले में जो हमारे वादे हैं. उसके बाद और वादे भी हैं. नंबर 7, किसान खुशहाल पाकिस्तान. सॉरी, वैसे तो हम कहते हैं किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, लेकिन ये हमारा वादा है कि खुशहाल किसान तो खुशहाल पाकिस्तान. Agriculture is the backbone of our economy, and we will need to invest heavily in the farming sector, and particularly small farmers. To this end, we will commit the following: the recognition of small farmers, Kisan, Hari, male and female agricultural workers as stakeholders in agriculture through registration with the Hari card and the Kisan card. Targeted, तमाम जो हारी होते हैं, छोटे ज़मींदार होते हैं, छोटे किसान होते हैं, उन सब को हम उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उनको हम हारी कार्ड दिलवाएंगे. And then through this card, फिर इस कार्ड के थ्रू हम टारगेटेड इंटरवेंशंस करेंगे जो कि डायरेक्टली किसान तक पहुंचे, डायरेक्टली किसान के हाथ में, किसान की जेब में ये मदद दिया जाए. इस कार्ड के थ्रू अगर हमने हाई क्वालिटी सीड्स को सब्सिडाइज करना है तो हम कार्ड के थ्रू करेंगे. अगर हमने DAP और यूरिया को सब्सिडाइज करना है तो हम कार्ड के थ्रू इंशाल्लाह ताला करेंगे. हम आपको इस कार्ड के थ्रू आपके प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्रोड्यूस में भी मदद करेंगे. लैंड इम्प्रूवमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट के लिए मदद किसान कार्ड के थ्रू, हारी कार्ड के थ्रू मिलेगा. लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन सर्विसेज भी हारी कार्ड के थ्रू, किसान कार्ड के थ्रू फैसिलिटी मिलेगा. क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो मौसमी तब्दीली की वजह से कभी ये सैलाब आ जाता है, तो कभी ड्राउट है, कभी ज़्यादा गर्मी है, तो कभी बहुत ठंड है, उसके लिए अब हमें अडेप्ट होना है. जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका सपोर्ट अगर हमने छोटे ज़मींदारों को, छोटे किसानों को पहुंचाना है तो वो भी हम डायरेक्टली किसान कार्ड के थ्रू उनको मदद पहुंचाएंगे ताकि वो सहूलत ले सके. साथ साथ जो ये कुदरती आफत है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ड्राउट हो, या ये लोकस्ट का भी हमारा एक हमले हुए थे, तो हम चाहते हैं कि ख़ास तौर पे जो गरीब जो छोटे किसान हैं, जो हारी है, उनके लिए हम क्रॉप इंश्योरेंस का सहूलत इस हारी कार्ड के थ्रू उनको दिलवाना चाहते हैं, ताकि अगर किसी साल में कोई नुकसान हुआ और उनको अगर हमारा बेनज़ीर हारी कार्ड के थ्रू ये वो रजिस्टर्ड है, तो नुकसान उठाने के बजाय उनका क्रॉप इंश्योरेंस वो नुकसान जो है वो कवर करें. And then we also want to promote diversity in crop and ensure crop support prices for various crops.
We also want to reform of the tenancy and labor laws to boost agriculture investment, leading to inclusive growth. अच्छा, वो किसानों के लिए हमारा वादा, फिर उसके बाद मजदूरों के लिए, मजदूर को मेहनत का सिला हम दिलवाना चाह रहे हैं, ये हमारा वादा है. और informal sector workers continue to lack job security and structured access to social protection. To facilitate them, we aim to guarantee a wage commensurate to their work, working towards a living wage for all. Registration of all workers, including the informal sector, those self-employed and agricultural workers, for social protection. And then through the Mazdoor card, they will be able to avail pensions, disability benefits, old age benefits, health insurance, school fees, जो भी तमाम तो मजदूरों को सहूलत उनका हक जो है उनको हम डायरेक्टली बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू ये तमाम सहूलतें पहुंचाएंगे. माजी में जो कोई आप अगर कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं तो फिर वो वहाँ से वो इंडस्ट्री से पैसा लेके फिर EOBI और वो पेंशन का सिलसिला और सब कुछ तो चलता रहता है. अब हम क्या चाहते हैं कि मजदूर कार्ड के थ्रू कि जो भी मेहनत करने वाले शख्स है, जो भी मेहनत करता है, जो काम करता है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो, चाहे वो किसी दुकान में काम करे, रेहड़ी वाला हो, रिक्शा ड्राइव करते हुए, मीडिया के ऑफिसेस में काम करते हुए, हम चाहते हैं कि आपको भी पेंशन का हक मिले. हम चाहते हैं कि आप सबको भी सोशल सिक्योरिटी की जो सहूलतें हैं हम वो पहुंचाएं. तो हमने इसको एक्सपैंड करने के लिए इसलिए कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहले लेबर राइट्स दिलवाए थे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसके बाद लेबर राइट्स दिलवाए थे. सदर ज़रदारी के दौर में पहली बार हमने 2007 से लेके 13 और उससे आगे तक जो एक्सपेंशन हुआ है लेबर राइट्स में पाकिस्तान में वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ. अब इंशाअल्लाह ताला 21st सेंचुरी के मुताबिक 2024 में हम मजदूर कार्ड लॉन्च करके इनकलाब लेकर आएंगे हमारे मजदूरों के लिए और उनको अपना मेहनत का सिला दिलवाएंगे. फिर हमारा आखिरी दो वादे, जवान मुस्तकबिल. Pakistan has one of the largest young populations in the world. To best utilize this demographic and aid their seamless entry into the workforce, we will introduce the Youth Card, which will provide 1 year stipend. आपके लिए है, जरा सुने आप. एक मिनट. We will introduce the Youth Card, which will provide 1 year stipend for educated, deserving young men and women to transition to work. Student loan opportunities for higher education, and we will also link up with internships and trainee jobs in the public and private sectors, upgradation of its infrastructure to guarantee. Oh, no. We will also pledge for an upgradation of IT infrastructure to guarantee high-speed connectivity across the country to incentivize youth-led startups in all sectors. Youth centers will be established across the country for accessing libraries and digital libraries, free Wi-Fi, sports, culture and recreational facilities, vocational training, skills and language development classes, career and employment facilitation services. So दो चीज़ें हैं यहाँ जवान मुस्तकबिल के वादे में. एक हमारा यूथ कार्ड है और यूथ कार्ड के थ्रू हम चाहते हैं कि हम अपने नौजवानों को जो कि तालीम या कुछ स्किल्स हासिल कर चुके हैं मगर वो रोज़गार की तलाश में हैं, उनको हम 1 साल के लिए हुकूमत की तरफ से माली मदद पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो जब वो रोज़गार की तलाश में हैं उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ हो, उनको कोई सहूलत मिले. साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट वाइज यूथ सेंटर्स खोलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो यूथ मरकज़ होंगे ये हमारे नौजवानों के लिए उनको पॉजिटिव एक्टिविटी दिलवाने के लिए, एक सेफ स्पेस फॉर पॉजिटिव एक्टिविटी दिलवाने के लिए हम ये यूथ सेंटर्स खड़ा करना चाहते हैं. कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी लड़काना में सर शाहनवाज़
भुट्टो लाइब्रेरी बनाया, और आज तक जिस तरीके से शहर के अवाम उस सहूलत को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब आपके सामने है। अब ज़रा सोचिए कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऐसे फैसिलिटी पहुंचाएं जहां ना सिर्फ वो लाइब्रेरी हो, साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी हो, साथ साथ वाईफाई का फैसिलिटी हो, साथ साथ एक स्पेस हो ताकि अगर उन्होंने स्पोर्ट्स खेलना है तो उनको स्पोर्ट्स के वो स्पोर्ट्स खेल सके। अगर वो सकाफती प्रोग्राम में एंगेज करना चाहते तो वो सकाफती प्रोग्राम करे। अगर वो गाना सीखना चाहते तो वो गाने सीखे। अगर वो नाचना सीखना चाहते तो वो नाचने सीखे। लेकिन एक ऐसा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के लिए एक ऐसा जगह हम मुयसर करना चाहते हैं, और उनके साथ साथ तो रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स और इन सारी चीज़ें के साथ साथ हम चाहते हैं कि वो तमाम मॉडर्न स्किल्स जो पूरी दुनिया में लेबर की ज़रूरत है, वो मॉडर्न स्किल्स से हम वो मॉडर्न स्किल्स अपने नौजवानों को सिखाएं। यूथ डेवलपमेंट के मतलब में आपको वो मॉडर्न स्किल्स देंगे ताकि वो स्किल्स आप लेके या पाकिस्तान में या कहीं और रोज़गार आपको मिल सके। तो वो स्किल्स हम आपको दिलवाएंगे, चाहे वो कोई टेक्निकल स्किल हो या मैं समझता हूँ जो बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज स्किल्स। हम आपको लैंग्वेज कोर्सेज भी लेके देंगे ताकि अगर आपने कहीं बाहर जाके काम करना है तो हम आपके इन यूथ सेंटर्स में वो लैंग्वेज कोर्सेज दिलवा सकते हैं। मैं वज़ीर ख़ारजा रहा तो मुझे पता चला कि जापान में उनको हर साल 4 मिलियन लोग चाहिए, लो स्किल मीडियम स्किल वर्कर्स चाहिए, इसलिए उनका डेमोग्राफिक्स का प्रॉब्लम है जापान में। तो मैं चाहूँगा कि मैं डायरेक्टली आपको लिंक कर लूँ। अगर अरबी की ज़रूरत है तो अरबी सिखाऊँगा, अगर जापानीज़ की ज़रूरत है तो जापानीज़ सिखाऊंगा, अंग्रेज़ी का ज़रूरत है तो अंग्रेज़ी सिखाऊंगा। और जिस तरीके से फिर कायदे अवाम ने दुनिया भर में पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार का बंदोबस्त किया, इंशाअल्लाह ताला मैं आपका रोज़गार का बंदोबस्त करूँ। आखिरी बात जो हम चाहते हैं इन यूथ सेंटर्स में कि एक करियर सर्विसेज मिले। करियर सर्विसेज का मतलब कि कोई एक करियर का दफ्तर का रोज़गार के लिए उधर दफ्तर हो और वहाँ आप जाके आप कह सके कि मैं रोज़गार की तलाश में हूँ, वो आपको मदद करे। अगर आपको स्किल्स की ज़रूरत है वो स्किल्स की तरफ आपको भेजे, लैंग्वेज की ज़रूरत है आपको वहाँ भेजे, आपसे पूछे कि आपके अचीवमेंट्स क्या है, आपके क्वालिटीज़ क्या है आपका, और उस अंदाज से फिर वो आपको बताए कि आप कहाँ रोज़गार तलाश करें। ख़ुद उनके पास पूरा डाटाबेस हो कि पूरा पाकिस्तान में क्या वैकेंसीज़ है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, और जो बेरोज़गार यूथ है हमारा उनको हम डायरेक्टली कनेक्ट करें उन वैकेंसीज के साथ। और ये जिम्मेदारी अब हुकूमत अपनाए कि हमारा काम है अपने नौजवानों को रोज़गार दिलवाना। तो ये हमारा जवान मुस्तकबिल का 9th प्रॉमिस है। आखिरी हमारा जो वादा है ये भूख मिटाओ का है। To directly address the needs of the food insecure, we will aim to make nutritious food available at affordable prices, boost domestic production, subsidize local producers, and connect women with the market economy as entrepreneurs. We will also employ a rights-based approach and promulgate the Right to Food Act in Parliament. Under this act, every eligible household will be entitled to purchase essential food items on subsidized. Eligible households will be entitled to purchase food items on subsidized rate. तो अगर आप उन deserving families में गिने जाते हो, अगर हमारे सर्वे के मुताबिक आप गरीब तरीन ख़ानदानों में शामिल हो, तो आपको वो हम फिर कम कीमत पे वो खाने पीने के अशिया पहुँचाना चाह रहे हैं। ये एक बहुत एम्बिशियस हमारा एक एजेंडा पार्टी बिलावल भुट्टो इस वक्त खिताब कर रहे हैं लाड़काना में। खबर आपको दें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा, और ये कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ को
POF वाह की पैदावारी सलाहियत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने और दरामद के हवाले से POF के किरदार से भी आगाह किया गया है। तो खबर आपसे शेयर कर रहे हैं, आर्मी चीफ को POF वाह की पैदावारी सलाहियत से मुतालिक ब्रीफ किया गया। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा किया है, जहां पर उनको ब्रीफ किया गया है। आर्मी चीफ को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के हवाले से और दरामद के हवाले से POF के किरदार से भी आगाह किया गया है। आर्मी चीफ का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा, आर्मी चीफ को POF वाह की पैदावारी सलाहियत से मुतालिक ब्रीफ किया गया और आर्मी चीफ को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने और दरामद के हवाले से POF के किरदार से भी आगाह किया गया है। तो ये अहम दौरा किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, और वहाँ पर आर्मी चीफ को POF वाह की पैदावारी सलाहियत के बारे में ब्रीफ किया गया है। आर्मी चीफ को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने और दरामद के हवाले से POF के किरदार से भी आगाह किया गया है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस विजिट से मुतालिक। बताइए सलमान। जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज बाह में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा किया है। इस फैक्ट्री के दौरे के मौके पर आर्मी चीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई POF के किरदार के हवाले से, खास तौर पर जो इस वक्त लेटेस्ट वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं POF के अंदर, और वो वेपन्स और एमिनेशन भी आर्मी चीफ ने देखी जो कि इस वक्त मुख्तलिफ टेस्ट एंड ट्रायल्स के मरहले से गुजर रहे हैं। आर्मी चीफ को आगाह किया गया कि किस तरह से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की जरूरियात को पूरा कर रही है, बल्कि जो इसका जो दिफाई पैदावार की दरामदात के हवाले से पोटेंशियल है, उसके हवाले से भी आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने POF के अफसरों और अमले से खिताब भी किया और उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, सलामती के लिए और खासतौर पर मुआशी हवाले से दिफाई पैदावार की अगर हम बात करें तो आर्मी चीफ ने उनको सराहा और कहा कि POF जो है यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एक प्राइम डिफेंस इंडस्ट्री है। आर्मी चीफ ने इस मौके पर जोर दिया कि जो इंडिजिनस या मकामी सनतें हैं, उन्होंने मिसाल दी POF वाफ की और कहा कि जो कौमी तरक्की जो है वो ऐसे ही इदारों से और ऐसी ही सनतों से मुमकिन है, और पाकिस्तान जो है वो जारी रखेगा अपना काविशें, कोशिशें हम करते रहेंगे ताकि जो एक खुद इंसारी की मंजिल है वो हासिल की जाए, और इसके साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मैदान है उसके अंदर भी पाकिस्तान की कोशिशें जारी रखी जाएंगी, क्योंकि इन्हीं की मदद से पाकिस्तान का जो दिफा है उसको तकवीत दी जा सकती है। इससे पहले आर्मी चीफ जब वहां पहुंचे तो चेयरमैन POF वाह की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। जी आपका सलमान। एक बार फिर आपको दिखाते हैं, लाड़काना में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं। Moreover, public investment has plummeted from a high of 12% of GDP in the days of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto to only 2% of GDP in 2023. Through enhancing investment, we will ensure long-term and sustainable inclusive growth that will unleash unemployment opportunities for the youth of Pakistan. Our investment plan will be based on two prongs. We will revive investment in the country through public-private partnerships, emulating the models successfully implemented in Sindh already, and we will, most importantly, invest heavily in climate change adaptivity, बल्कि हम अपना पूरा जो डेवलपमेंट का स्ट्रैटेजी है, पूरा जो डेवलपमेंट का नक्शा है पाकिस्तान का, जो PSDP का रवायती तरीका। बिलावल भुट्टो इस वक्त खिताब कर रहे हैं। आगे बड़ी खबर आपको दें, दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। केस की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर सरकारी गवाहों को तलब कर लिया। गैर शरई निकाह के बानी PTI और इनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर सरकारी गवाहों को तलब कर लिया। अदालत ने गैर शरई निकाह केस की मज़ीद समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता रोज बुकला सफाई ने अदालत को बुशरा बीबी की हाजिरी की तहरीर यकीन दहानी कराई थी। और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने न्यू टाउन मुकदमे में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया है। अदालत ने शेख रशीद अहमद की 14 में से 13 मुकदमात में जमानत मंजूर की है।
शेख रशीद की 14 में से 13 मुकदमात में जमानत मंसूर, 1 में खारिज। पुलिस ने कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की 9 मई के वाक़े पर थाना न्यू टाउन में जलाओ घिराव और हसास इमारत पर हमले की मनसूबाबंदी के मुकदमे में जमानत खारिज की गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस शेख रशीद को अपने साथ ले गई। इनके वकील का कहना है कि शेख रशीद को पुलिस हिरासत में दे दिया गया है, लेकिन पुलिस को इन्हें कर अदालत में पेश करना होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और भतीजे राशिद शफीक के खिलाफ सालिया 9 मई के हवाले से 12 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें पुलिस ने गिरफ्तारी मांग रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखरने लगा। पार्टी में धड़े बंदी उरूज पर पहुंच गई है। शेर अफजल मरवत ने सदर आरिफ अलवी को निशाने पर रख लिया। बोले आरिफ अलवी के बेटे को टिकट देना गलत फैसला है। मजीद कहा कि रऊफ हसन ने बानिए चेयरमैन के मुखालिफ सहाफ़ियों को टिकट दिलवाए। PTI और JUI शेरानी ग्रुप अलायंस को भी खत्म कराया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंतशार। मरकजी क़यादत में पार्टी पर कब्जे की जंग तेज हो गई। शेर अफजल मरवत ने एक वीडियो बयान में सदर आरिफ अलवी को तनकीद का निशाना बनाया। आरिफ अलवी के बेटे को पार्टी टिकट जारी करने की भी मुखालफत की। शेर अफजल मरवत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI रऊफ हसन के दरमियान इख्तलाफात भी शिद्दत इख्तियार कर गए। रऊफ हसन ने शेर अफजल मरवत की बानी चेयरमैन से मुलाकात पर तशवीश का इजहार किया, जिस पर शेर अफजल ने ट्वीट में कहा रऊफ हसन ने बानी चेयरमैन के मुखालिफ सहाफ़ियों को टिकट दिलवाए। PTI और JUI शेरानी ग्रुप अलायंस ख़त्म करवाया। ये एक साजिशी है और अक्सर पार्टी पर दरारें डालने में मसरूफ रहता है। रऊफ हसन ने PTI की सिंध में कामयाब मुहिम को कमज़ोर करने की कोशिश की है। और कल रात 9 बजे तमाम लिस्टें फाइनल कर लेंगे। 8 फरवरी को फतह PTI की होगी। बैरिस्टर गोहर खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि शेख रशीद से इलेक्शन के हवाले से इत्तेहाद नहीं हुआ था। शेर अफजल मरवत हमारा है, हमारे साथ रहेगा। PTI के अहदेदार और कारकुन इख्तिलाफात में ना पड़े। इंशाअल्लाह ताला हम सारी लिस्टें फाइनल करके अपने वोटर सपोर्टर को इंशाअल्लाह ताला अपने वेबसाइट पे फाइनली डिस्प्ले कर लेंगे। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी। आप मुतहद रहे, अपने वोटर की पहचान करें, अपने कैंडिडेट की पहचान करें और उनको कामयाब कराएं। शेख रशीद साहब के साथ हमारा पहले इतिहाद था और इतिहाद पार्लियामेंट के वक्त तक था। उसके साथ इलेक्शन से रिलेटेड कोई इतिहाद हमारा नहीं हुआ था कि हमारा इतिहाद तो हमारा उसके साथ एक इतिहाद नहीं था। और हमने पहले भी अनाउंस किया था कि हम हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारे कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे। देखिए वो हमारा है, हमारे पास से हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह ताला और हमारा कैंडिडेट है और वो वहाँ लकी मरवत से इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेगा भी और जीतेगा भी इंशाअल्लाह ताला। आपस की जो तजादात है और इख्तिलाफात है इसको इशू ना बनाए। अगर आप ज़ाती इशू में लगेंगे तो आवाम का एक लार्जर इंटरेस्ट हमारे पास पड़े। अगर आपका ज़ाती इख्तिलाफ है, टू कीप इट टू योरसेल्फ, पार्टी शैल स्टे यूनाइटेड एंड द पार्टी रिकॉग्नाइजेज एवरीवन। और अब इलेक्शन से जुड़ी खबरों के लिए हम चलते हैं साथी एंकर अफशीर की जानिब।